Good morning, students. As you know, we have started the sound chapter. Okay, and I've explained you about the sound, that what is sound, how sound is produced, how we are able to hear the sound, why some sounds are louder than others, and different things about the sound. Okay, we have completed the topic vibration, that sound is produced by the vibration of object. Okay, then speed of sound, then how sound travels. Sound needs a medium to travel. Then I have explained you about that sound travels in the form of waves. Now this is the diagram of a wave. Okay, this is a roughly diagram of wave, that sound travels in the form of waves. In that video which I have sent you in the group, in that video explanation was given that how the air molecules disturb, means disturbance of the air molecules, how they travels, okay, in the air, then we hear the sound. So this is the graph, this is the wave, that this is the movement of particles. This one is compression. Okay, when particles are compressed, means when they transfer the energy, means when they vibrate, when they transfer the vibration to other particles, that is compression, means they are compressed. When the distance, that is rarefaction, then this is amplitude, and the length between two waves, that is wavelength. Amplitude we have to learn. This is a simple introduction of this sound wave form. Okay, so now we have to learn the characteristics of this wave. ये जो वेव है बेटा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अब पढ़ेंगे. सो waves are characterized by three basic quantities, that is frequency, okay, amplitude and time period. ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वेव्स की पढ़नी है. तो इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट सिंपल पेंडुलम. ठीक है. So here the simple pendulum, we are taking the example of simple pendulum instead of molecules. जो molecules का जो vibration होता है, जो वो transfer करते हैं, हम उन्हीं molecules का एक example, मतलब हम molecules का यहाँ diagram बना के उसका explanation नहीं कर सकते, तो हम बॉब का simple pendulum का example लेकर आपको explain करेंगे different क्वांटिटीज़ के बारे में, जो वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है. और जो बॉब का जो भी फंक्शन होगा, जो भी उसका मूवमेंट होगा, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सेम वही सारी चीज़ें आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं. ओके, सो दिस इज सिंपल पेंडुलम. A simple pendulum consists of a small metal ball. Here it is bob, small metal ball suspended by a long thread. Okay, then from a rigid support. ये क्या है आपका, एक rigid support है, such that the bob is free to swing back and forth. मतलब bob आपका क्या करेगा, to and fro motion, back and forth motion. ठीक है. So motion of the bob from one extreme position to other extreme position and back is called one oscillation of the pendulum. This is the simple introduction of bob. Now we have to learn this amplitude, time period and frequency. Now see this picture. Okay, here the bob is given, position A is mentioned, B, C. A mean position, B and C is extreme position. Now I've told you that motion of bob of a pendulum from one extreme position to the other extreme position and back is called one oscillation of pendulum. Means bob अपनी मीन जो पोजीशन होती है उस पोजीशन से अपनी ईदर साइड पे जो एक्सट्रीम पोजीशन को कवर करके वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, वो होता है उसका वन ऑसिलेशन. ठीक है, वो उसका वन राउंड होता है, वन टू एंड फ्रो, वन बैक एंड फोर्थ मोशन होता है उसका. ठीक है. तो यहाँ पर ए क्या है, मीन पोजीशन. ए से बॉब अपनी इस साइड पर गया, बी फिर उधर साइड पर गया, सी. ठीक है. और बी और सी यहाँ पर क्या है आपके, एक्सट्रीम पोजीशन. सो दिस इज व्हाट
ए मीन पोजीशन, बी एंड सी इज एक्सट्रीम पोजीशन। ये तो एक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन था। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड। तो हेयर द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इज रिटन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, बॉब का जो मीन पोजीशन से अपनी ईदर साइड की एक्सट्रीम पोजीशन की जो एक मूवमेंट है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे ये एक सर्कल का डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ए लेबल है, बी लेबल है, ए से बी तक एक एरो गई है, एक लाइन गई है। ठीक है, लाइन नहीं, हम एरो कहेंगे उसको। वो क्या है आपकी, जैसे कोई अगर ए से बी जा रहा है तो वो उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन अगर ए से बी जो ये डॉटेड लाइन शो हो रही है, ए से डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट में कोई बी तक पहुंच रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ए से जो ये लॉन्ग डिस्टेंस गया था बी तक, वही उसने ए से ये जो डॉटेड लाइन है उसको शॉर्ट में कंप्लीट कर लिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, जैसे ए है, ए पर बॉब है अपनी मीन पोजीशन पे, उसको हमने उसने क्या किया, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट किया, वो बी तक गया, बी से फिर सी तक जाएगा, मतलब इस साइड जाएगा, फिर वापस अपने ए साइड पर आएगा, ए पर आएगा। ठीक है, तो वो पूरा क्या हुआ, वन ऑसिलेशन। लेकिन अगर हम शॉर्ट में देखें तो ए से बी और ए से सी वो क्या होगी, दोनों साइड की उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ए टू बी, ए बी एंड ए सी आपका एम्पलीट्यूड है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ए से बी है और ए से सी पर, ईदर साइड। हम दोनों साइड का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बॉब हमारा टू एंड फ्रो मोशन करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। ठीक है, तो ये आपका एम्पलीट्यूड हुआ। फिर से देख लीजिए डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज व्हाट, हियर द डेफिनेशन इज रिटन, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम। जो पेंडुलम का जो बॉब है, टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है आपका, टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बॉब को अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो होता है उसका टाइम पीरियड। और एक ऑसिलेशन क्या होता है, ए से बी, बी से सी और सी से ए, मीन्स कि अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर जाना, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, देन बैक अपनी मीन पोजीशन पे आना। एक राउंड, एक ऑसिलेशन होता है, और उस एक ऑसिलेशन को करने में बॉब को जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ बॉब। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, हियर इट इज रिटन A to B, then B to C, then C to A. So it is what, time period means one oscillation, and time period is denoted by capital T. ठीक है, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें आपके टर्म्स यूज होंगे, तो टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाई T. Now next is your frequency. Frequency is what, the number of oscillations made by a simple pendulum in 1 second is called frequency. अब क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी क्या हुई, एक सेकेंड में बॉब कितने ऑसिलेशन को करता है, एक सेकेंड में, मतलब यहाँ पे टाइम गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय बॉब इन 1 सेकेंड। बॉब एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस करता है, उससे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। आपने देखा होगा जैसे कभी हम लोग कुछ सुनते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है रेडियो वगैरह पे कुछ भी, तो उस पर कहते हैं कि ये इतने हर्ट्ज पर है, या फिर कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कुछ आते हैं तो उस पर लिखा होता है फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज में लिखी होती है। सो वो किसकी बात कर रहे होते हैं? फ्रीक्वेंसी की। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? हर्ट्ज। एंड इसको डिस्कवर किसने किया था? ठीक है, डिनोट इन्होंने मतलब जो ये नेम रखा गया था ये किसके ऑनर में रखा गया था? एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हेनरिच आर हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल n और स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड की होती है। ठीक है, जैसे सिंपल पेंडुलम 4 ऑसिलेशंस कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4 × 1 दैट इज 4 हर्ट्ज। 4 ऑसिलेशंस 4 हर्ट्ज, 10 ऑसिलेशंस 10 हर्ट्ज। ओके, सो amplitude is maximum displacement here, A to B, A to C. This is maximum displacement, that is amplitude. Okay, then time period, time taken by Bob to complete 1 oscillation. Bob को एक oscillation करने में जितना टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। ठीक है, और आपका फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस in 1 second, number of oscillations covered by Bob in 1 second. 1 सेकेंड में बॉब कितने ऑसिलेशन कर रहा है, मीन्स यहाँ पर टाइम आपको गिवन है, आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस फाइंड आउट करना होता है। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस बॉब यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल n और f से डिनोट करते हैं। ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था, इस वीडियो को पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आएगा कल आप जब अभी आपकी हम क्लास लेंगे तो उस क्लास में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे फिर से, लेकिन अभी मैंने इसलिए वीडियो में आपको भेजा है कि ताकि आप एक बार समझ लें, सुन लें, फिर उसके बाद अपने डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, तो आप इस वीडियो में देखिएगा ध्यान से, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे पूछिएगा क्लास में। थैंक यू।